Okay, so I was just thinking that what everybody of us in our life, okay, what thing we all want in our life, we all are looking for, or everybody of us is, running here or there, working for, or we are working very hard. What we actually want in our life, what is that need of life for which everybody of us is hankering यानी उसका कौन से चीज के लिए सब लोग क्या कहते हैं, लालायित है अगर हिंदी में बोलेंगे तो, ठीक है. व्हाट इज दैट थिंग, कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स दैट वन थिंग, ठीक है, कौन सी चीज हो सकती है. अनुष्का गॉट द आंसर, अनुज गॉट द आंसर, ग्रेट. ओके, अथर्व सर्वेश का भी एक आंसर है, ठीक है. सो अथर्व सेड मनी, सर्वेश सेड मनी, ठीक है. प्रांजल सेड आवर एम्बिशन, वैष्णवी सेड सेटिस्फैक्शन, ओके. प्रांजल अगेन सेड ड्रीम, okay, great. So when we say money, or somebody may say big bungalow, big car, okay, I want big car, I want what we say, a spacious huge bungalow at the beach, or just near some mountain or some valley or whatever, ठीक है. और in some great city, big city, I want a bungalow. कोई बोलता है मुझे कार चाहिए, कोई बोलता है I want a perfect partner, ठीक है, perfect wife, perfect husband, whatever, and all of your children, ठीक है. But these are the needs people say, but at the end अगर ये सब needs के पीछे देखते हैं, money, by money, so by money you may buy something, ठीक है. And by buying that you want what, you require happiness, ठीक है. तो ambition, because we feel that ये मेरा ambition है और ये ambition achieve करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, happiness. So in short, जो भी चीजें हम लोगों को चाहिए वो सब के एंड में हम लोग क्या चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, ठीक है. सेटिस्फैक्शन मीन्स व्हाट, आई एम गेटिंग हैप्पीनेस, ठीक है. वॉट एवर आई एम डूइंग उससे मुझे हैप्पीनेस मिल रहा है. सो एवरीबडी ऑफ अस इज रनिंग बिहाइंड दिस वन थिंग दैट इज हैप्पीनेस, ठीक है. देन इफ यू कैटेगराइज दिस हैप्पीनेस, कौन से चीजों में से वी ट्राई टू टेक आउट द हैप्पीनेस, कौन से चीजों में से हम हैप्पीनेस डिराइव करने का ट्राई करते हैं. एंड दोस थिंग्स आर व्हाट, सो दे कम डाउन टू 4 things, ठीक है. 4 things, which are the 4 things? So these 4 things are, ठीक है, just second. First, eating, ठीक है. These are the categories, basic categories. में से ये कहाँ से बोल रहे सर, तो ये मैं महाभारत से बोल रहा हूँ, ठीक है. महाभारत से mating, that is producing children, ठीक है. eating, mating, sleeping, and 4th one is defending. These are the 4 things, okay, from which we actually try to derive happiness. ये चीजों में हम लोग happiness derive करने का try करते हैं. अब हम ये चीजें देखेंगे अगर, so these are the things which actually animals also do, and they do these things much better than what we can do, ठीक है. हम जो करते हैं हमारे से कई गुना ज्यादा बेटर वो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से हाउ मच यू कैन ईट, ठीक है, आप बोलेंगे आई वांट टू ईट, ठीक है. हाउ मच यू कैन ईट, you can eat only few chapatis, ठीक है, थोड़ा सब्जी, थोड़ा दाल, राइस, बस यही सब कुछ. But if I ask you how much does an elephant eat, elephant eats, ठीक है, tons and tons of food. He can practically eat whole day, ठीक है, पूरा दिन खा सकता है, इतना एलिफेंट खा सकता है. फिर आप बोलोगे अगर कि चलो ठीक है खाने का हो गया, what about producing children, ठीक है. How many children a human can produce, a man or a couple, ठीक है, they can produce 1 child in a year, ठीक है, maximum, ठीक है. But if we say animals, a dog can produce a dozen puppies, ठीक है, in a year, इतना produce कर सकता है. There are some worms and some insects, जैसे अभी because I'm in biology, I will tell you example of this Ascaris helminthes में Ascaris, it produces 2 lakh eggs, ठीक है. तो 2 लाख एग्स प्रोड्यूस करते हैं वो लोग इन आवर इंटेस्टाइन, thus it spreads. And now all of you know corona, how fast it is spreading. So we see that the organisms, they are much more better in mating and producing children also, ठीक है. then eating, mating, sleeping हो गया. so sleeping, you may say sir मैं तो इतना सो सकता हूँ या इतना सो सकती हूँ कि मैं 8 घंटा 10 घंटा तक सो सकता हूँ. अरे कुछ भी नहीं है 10 घंटा, ठीक है. Now one of my friend, he slept on Friday and he got up on Sunday, ठीक है. तो हर जगह पे खलबली मच गई, बाप रे इतना सोया, फ्राइडे को सोया और संडे को उठा. बट ये कुछ भी नहीं है इफ वी कंपेयर टू पोलर बियर, ठीक है. पोलर बियर sleeps for 6 months in a
सिंगल शॉट, ठीक है। आज सोया 6 महीने के बाद उठा, तो जनवरी में सोया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में डायरेक्टली उठा, ठीक है। इतना 6 मंथ्स के लिए वो सोता है पोलर बियर। सो ये जो ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग बोला, तो डिफेंडिंग में आपको अगर एक आदमी को रख दिया टाइगर के सामने, तो आदमी क्या है टाइगर के सामने? वो टाइगर ऐसे एक थप्पड़ में आदमी को मार देगा, बिकॉज टाइगर्स, उनका पावर जो होता है या उनके जॉ का जो स्ट्रेंथ होता है, वी आर नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। अपन नाखून से क्या करें? ठीक है। यू मे से सर वी हैव टेक्नोलॉजी, मेरे पास बंदूक है और मेरे पास ये है वो है, मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, या टेक्नोलॉजी भी है, वो सब है, लेकिन हम अगर डिफेंडिंग बोल रहे हैं जिसमें हम हैप्पीनेस ट्राई करने का देख रहे हैं, तो एनिमल्स आर मच बेटर देन ह्यूमन बींग्स। सो टेक्नोलॉजी ह्यूमन प्रोड्यूसेस, बट व्हाट ही यूजेस द टेक्नोलॉजी फॉर, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बोलोगे टेक्नोलॉजी से हम लोग एनिमल से बेटर हो जाएंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी से हम एनिमल्स के लेवल पे नहीं है, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंड नहीं है, तो एनिमल्स भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से मेरे पास ये है, क्या है ये गैजेट है, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव लैपटॉप एंड मेरे पास ये है वो है, ये टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर रूइनिंग आवर लाइफ, ठीक है। व्हाट द टेक्नोलॉजी इज डूइंग नाउ, यू सी 20 years down the line, for 50 years down the line, what was the condition and what is the condition now, ठीक है। क्राइम्स देखो, सुसाइड देखो, पोल्यूशन देखो, ये क्या कर रहे हैं हम लोग? व्हाट इज द यूज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी? वी हैव कार्स, वी हैव एरोप्लेन्स, मगर ये सब क्या कर रहे हैं? दे आर रूइनिंग एवरीथिंग। क्यों? इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, इतना प्लास्टिक बना लिया हमने प्रोडक्ट्स में, हर हर कोई भी प्रोडक्ट लाया उसका प्लास्टिक का कवर होता है, वो प्लास्टिक निकालो फेंको, एंड दैट प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो क्या कर रहा है? इट इज पोल्यूटिंग होल एटमॉस्फेयर, इट इज पोल्यूटिंग वाटर, पोल्यूटिंग अर्थ, सब कुछ खराब कर दिया हमने, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी? दैट इज टोटली टेकिंग अस, ruining our earth, at the same time बाकी एनिमल्स और अपना ह्यूमंस का भी खुद का लाइफ पूरा ruin कर लिया। सो यू मे से सर आज ये बात क्यों कर रहे हैं अभी? सो व्हाट आई वांट टू टेल फ्रॉम दिस इज दैट कि ये जो चीजें है ना, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, ये जो कर रहे हैं, दीज आर ऑन प्लेटफॉर्म विथ इक्वल विथ एनिमल्स। तो ह्यूमन बींग्स में ऐसा क्या है कि वो थोड़ा हायर कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू जस्ट लिव योर लाइफ फॉर ईटिंग, डज दैट मेक एनी सेंस? आप सिर्फ खाने के लिए जी रहे, बस क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे खाना चाहिए, बस मैं इधर जाके खाऊंगा, उधर जाके खाऊंगा, सो यू आर नो बेटर देन एनिमल इफ वी आर जस्ट लिविंग फॉर ईटिंग। सो ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, ये चार चीजें, these four are common between man and humans, ठीक है। man and animals, humans and animals. So what thing is different? So that thing, different thing is, so Mahabharata is that, ठीक है। I'll just show you the picture, just a second, so you all can take a screenshot of this picture, ठीक है। इसका screenshot ले लो, and you can memorize this verse also. This is from Mahabharata. Mahabharata tells that ahara nidra bhaya maithunam cha, that means eating, mating, sleeping, defending, samanyam etad pashubhir naranam, these are same between pashu, animal, and human. Nar means human, ठीक है। what is different? धर्मो हि तेषो अधिको विशेषो धर्मेण हिना पशुभि समाना। धर्म, ठीक है, धर्म, दैट मीन्स सम हायर ड्यूटीज ऑफ अ पर्सन, ठीक है। दे आर डिफरेंट इन ह्यूमंस। इफ ही डज नॉट हैव धर्म, इफ ही डज नॉट हैव एनी हायर ड्यूटी टू परफॉर्म इन हिज लाइफ than eating, mating, sleeping, defending, then he is pashubhi samana, that he is no better than animal, ठीक है। एनिमल से बेटर नहीं है वो। so the activities of eating, sleeping, mating and defending are common in animals and human beings. The human beings are considered superior only when they inquire about higher dimensional science involving the wisdom about God, his creation, his laws, and the secret of true inner fulfillment in life. Otherwise they are considered just like animals. सिर्फ animals जैसे consider हो। अगर कोई अपने लाइफ में सोचता नहीं है कि what is special I can do in life for others, for what I can do for society, who is God, what will happen to me after death, if you don't have these questions, then we are just living like an animal. हम बस खा रहे, पी रहे, रह रहे, सो रहे, ये तो एनिमल्स भी कर रहे हैं। ये हायर इंटेलिजेंस होके फायदा क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ दैट हायर इंटेलिजेंस? एंड फॉर दैट वी आर अरेंजिंग दीज सेशंस, ठीक है। दीज सेशंस दे विल हेल्प यू डेवलप सर्टन क्वालिटीज इन योर पर्सनल लाइफ, जो आपको पर्सनल लाइफ में यूज हो रही है। एट द सेम टाइम दे विल चेंज, ठीक है, दे विल चेंज यूर व्हाट वी से लुकआउट, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, चक्षु बोलेंगे हम आपको, दे विल गिव यू ज्ञान चक्षु और गिव यू
eyes of knowledge. So आप बोलेंगे eyes of knowledge क्या है? When you have knowledge, how you see the world, that is different. ठीक है? So that's why we are arranging these sessions, and with this I would like to start our today's session. ठीक है? इसके साथ मैं आज का सेशन अपना स्टार्ट करना चाहता हूँ. So I would like to introduce our today's guest, that is Mr. Anurag Pardesi sir. Sir, you are there? Yeah. So yes, Anurag sir is one of my very good friend, and we have been like from childhood we have been together. So he is very good friend of mine. I will just give a little introduction about him. Actually, he is from rural Maharashtra, but how he came up, like our previous speakers, I also told about the same thing. Here also I'm telling, he is a man, self-made man. Okay, from his personal life, he have come to Pune, and he came in. He studied in Sinhagad College. He worked. After college he worked for some time. Then he did his MBA. Then after that MBA, he switched few companies for the change, and later on right now he's working in the best field what he likes, and he always wanted to be like that. He is a senior business analyst in Tech Mahindra. So Anurag sir, we welcome you here for this session, and thank you very much, because I have never seen you giving sessions for children, like for all of our children. You always give sessions for corporates and elder people, but thank you very much for coming for this session. And thank you, the pleasure is mine, Amit sir. I think your mic is muted. Am I audible now? Just a second. Yeah. Yes, sir. Okay. So, Amit sir, the pleasure is all mine. I would like to interact with all the young, teenagers full of, enthusing with energy, and, this is the right time to tell all the principles that you are sharing. I really appreciate the kind of value education you are giving to the students. So yeah, you tell me how we are going to proceed. तो सर, मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. ये बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है, हमको वो बताओ पहले. व्हाट इज बिजनेस एनालिस्ट, क्या है जो आप बने हो? बिजनेस एनालिस्ट मतलब, जैसे अभी आपको समझेगा ऐसे लैंग्वेज में बताता हूँ. जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं, हमने सुना है कि आईटी कंपनीज होती क्या है, जो दूसरी कंपनीज को, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर कोई हॉस्पिटल है, तो दूसरी कंपनीज को जो उनका सिस्टम पूरा आईटी में ढालने के लिए मदद करती है, वो होती है आईटी कंपनीज, वो होते हैं सिस्टम इंटीग्रेटर्स. तो हम लोग जैसे किसी कंपनी, जैसे कोई कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट, या फिर फोक्सवैगन कार की कंपनी है. तो फोक्सवैगन में कैसे, मतलब हर मैटर कहाँ से आता है, वो डोर्स के लिए लगने वाला जो लोहा है वो कहाँ से आएगा, सब चीजें कहाँ से आएंगी, फिर आने के बाद वो कहाँ जाएंगी, किस हाउस में जाएंगी, क्या क्या बनेगा, दरवाजा कैसे बनेगा, इंजन कौन बनाएगा, ये सब चीजें जो मैनेज करता है वो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं. तो बिजनेस एनालिस्ट मतलब हम किसी बिजनेस को पूरा समझ के उसको आईटी में कैसे ला सकते हैं वो देखते हैं, उसका सॉफ्टवेयर बनाते हैं, फिर उसको सपोर्ट देते हैं, आगे जाके कुछ चेंजेस होंगे सॉफ्टवेयर में वो करते हैं. सो दैट्स अबाउट माय प्रोफेशन. ओके सर, आई हैव सीन यू इन कॉलेज लाइफ, एंड अभी कॉलेज लाइफ में और आपके वर्क लाइफ में एक जब स्टूडेंट को, क्योंकि ये सारे हमारे जो स्टूडेंट्स है ये JEE नीट वाले हैं, 11th-12th वाले हैं, और जब ये अभी ग्रेजुएशन में जाते हैं तो दे आर इन मोड ऑफ स्टडीज एंड सीइंग द वर्ल्ड एंड व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड. फिर उसके बाद में जब ये लोग प्रोफेशन में जाते हैं तो आई थिंक द लाइफ इज टोटली डिफरेंट. सो यस, कैन यू टेल सम डिफरेंस, लाइक सम थिंग्स जो अभी से ये स्टूडेंट्स को कल्टीवेट करने चाहिए कि ये एक्चुअली प्रैक्टिकल, जब ये दे विल वर्क इन कंपनीज और दे विल हैव देयर ओन वेंचर्स, सो हाउ दे कैन व्हाट टू से इनकलकेट दिस, कौन से क्वालिटीज कि वहां पे वो अच्छा कर सके आगे जाके, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. श्योर अमित सर. सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज, जो मेरे टीनेज में या फिर मैं कहूँगा मेरे कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में मुझे जो पता चला, जो क्वालिटीज उस टाइम मुझे दी गई, जो वैल्यूज सिस्टम, जैसे आप अभी सबको बता रहे हैं, समवॉट सिमिलर वैल्यू सिस्टम मुझे भी दिया गया था उस वक्त, और समवेयर दैट हेल्प मी. कहीं तो आज भी वो चीज मुझे हेल्प कर रही है मेरे कॉर्पोरेट करियर में आगे जाने के लिए. तो वो चीज ऐसे कि जैसे
बेसिक अगर वैल्यूज आपको पता हो तो आगे जाके आप जॉब कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप में आपका फ्रेंड्स के साथ कैसा रिलेशन है, आपका सोसाइटी में क्या इमेज है, आपका ऑफिस में आप काम कैसे कर रहे हो, आपके टीम को कैसे मैनेज कर रहे हो, ये सब चीजों में रिफ्लेक्ट होता है ना। तो जैसे बेसिक अगर आपका बहुत अच्छा हो, तो मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरे कॉलेज डेज में मुझे ये सब बताया गया था, मैं तब इतना रिलेट नहीं कर पा रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू रिलेट कि भाई ये सब चीजें मुझे कैसे हेल्प करेंगी। मैं सेंस कंट्रोल या फिर मेरे जो इंद्रिय है जिनसे मैं एंजॉय करने का सोचा हूँ, राइट, कॉलेज या फिर 11th 12th में सब लोग सोचते कि यार एंजॉय करना है यार, 12th करना है, 12th के बाद कोई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज जाएंगे, पैसा कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उस वक्त हम बहुत ज्यादा अलग दुनिया में होते हैं, तब ये चीजें मैटर नहीं करती। बट उस वक्त मुझे जब बताया गया था, इनिशियली इट डिडंट मेड एनी सेंस, इनिशियली कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट स्लोली आई स्टार्टेड गिविंग अटेंशन, मैंने समझना चालू किया, तो वो चीजें मेरे लाइफ को पूरा चेंज कर गई, वेरी जिसके इंपॉर्टेंट वजह से आज भी पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट सब नोट यस कर यस सकते हैं। ये सर कि एंजॉयमेंट, हम लोग ये मेंटेलिटी में कभी नहीं जाना चाहिए हमें कि आई वॉन्ट टू जस्ट एंजॉय द थिंग्स। नई चीजें क्या है, मैं आ गया और क्या एंजॉय कर सकता हूँ, और क्या एंजॉय कर सकता हूँ। लाइक अनुराग सर टोल्ड, बेटर टू बिल्ड अप वैल्यूज, वैल्यूज बिल्डअप करें, कुछ स्किल्स बिल्डअप करें हमारे लाइफ में, जो हमें आगे जाके कंपनीज में या हमारा जो फ्यूचर करियर लाइफ है वहां पर हमें हेल्प करेगी। ये सर, फिर प्लीज कंटिन्यू, कौन से स्किल्स हो सकते हैं जो हेल्प करेंगे? वैल्यूज, करेक्ट। तो स्किल्स और वैल्यूज मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बड़े बड़े आप स्किल्स कुछ डेवलप करो, इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एंड स्मॉल एज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह ग्रेट। जल्दी उठना। ये बहुत छोटी चीज है दिखने के लिए, बट अगर आप देखेंगे जितने भी आज बड़े बड़े बिलियनियर्स है, इफ यू आर इफ यू आर अवेयर कि देयर इज अ बुक बाय रॉबिन शर्मा, द 5 AM क्लब। सो बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठने के इंपॉर्टेंस बताते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज है जो वैल्यू सिस्टम मुझे दिया गया था, उसका एक ये बहुत छोटा पार्ट है जो शायद वैल्यू लगे भी ना, एक छोटा सा सिर्फ एक हैबिट है कि सुबह जल्दी उठना। बट वो चीज इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है कि जैसे अगर आप 5 बजे उठ रहे हो इंस्टेड ऑफ वेकिंग अप एट 7:30 8 o'clock, तो इवन साइंटिफिकली उसके बहुत सारे अच्छे मतलब परिणाम बताए गए हैं कि कैसे आपकी बुद्धि कुशाग्र होती है, कैसे आप डिसीजन बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं, कैसे आप दिन का वक्त का सही उपयोग कर सकते हैं। सो ये सब चीजें उसमें बहुत अच्छे से बताया है, बहुत अच्छे से मुझे समझाई गई उस वक्त, तो इसलिए वो आज भी मुझे मतलब श्योर, हेल्पिंग मी आउट इवन टुडे। थैंक सो यू या, वेरी मच सर। हम वी ऑल स्टूडेंट्स वी विल नोट डाउन द बुक, ठीक है, द 5 AM क्लब, ठीक है, ऑल ऑफ द यू कैन 5 AM रीड। क्लब जिसको बाय रॉबिन सुबह शर्मा। या सुबह उठने में डिफिकल्टी हो रही है, तो यहाँ पर हमें एक बुक के बारे में पता चला है, आप लोग उसके बारे में पढ़ सकते हैं। So, sir, I will come to the topic of our today's session because I have seen that आपका जो वर्क है, आपके वर्क में बहुत सारी चीजें आपको साइमल्टेनियसली करनी पड़ती है। कई जगह पे इतने सारे चीजें आ जाती है कि कौन सी चीज पहले करे, कौन सी चीज बाद में करे। कुछ पेशेंस लगता है करने के लिए, और प्रोडक्टिविटी यानी हम बेस्ट चीज, हमारा बेस्ट आउटपुट दे। ये सब के लिए हाउ एक्चुअली अ पर्सन कैन वर्क स्मार्टली, किस तरह से हम स्मार्टली वर्क कर सकते हैं हमारे लाइफ में कि हम बेस्ट परफॉर्म कर सके हमारे लाइफ में, आप बताइए। ओके अमित सर, सो आई थिंक आई विल से यू हैव टू राइट अ बुक ऑफ योर लाइफ। आपको आपके जीवन की एक स्टोरी लिखनी पड़ेगी। जैसे मेरा मेरा एज अभी 30 है, तो मेरे लाइफ के 30 पेजेस में पलट चुका हूँ। तो इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। ये पिछले 30 पेजेस में मैंने जो कुछ लिखा है, जो कुछ गलतियां की है, जो कुछ रफ वर्क किया है, जो भी किया है, आई कैन नॉट चेंज इट। बट मेरे हाथ में है कि कम से कम आगे के जो पेजेस हैं वो मैं अच्छी तरह से लिखूं। तो सबसे पहले मैं कहूंगा, अगर आपको लाइफ चेंज करनी है, यू वांट टू बिकम a good leader in future, a good person in future, so for that I must say you have to write a book of your life. Great, So ठीक है। yeah, यस सर, लाइक आई यू मीन कि हम अपना एक बुक अलग से बनाए, क्या आप कहने बोलना क्या है? मुझे समझा नहीं। correct, so I was coming to that, Amit sir, कि बुक लिखना है मतलब आपको आपकी क्वालिटीज डेवलप करनी है, isn't it? कोई भी बुक होता है तो आई कैन से उसका जो टीओसी होता है, उसका जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, उसमें आपको पता चल जाता है कि बुक में क्या है ना, वही जो मेन उसकी पॉइंटर्स होते हैं। तो इंडेक्स। सिमिलरली हमारे लाइफ का जो, अगर आपको पूरा मतलब एक सक्सेंट व्यू चाहिए होगा, तो वो होगा आपकी क्वालिटीज क्या है, isn't it? So ये जो क्वालिटीज होती है, हम सब में अच्छी क्वालिटीज होती है, मैं कहूंगा हर एक में अच्छी क्वालिटीज होती है।
तो भगवत गीता में मतलब शास्त्रों में कहा गया है कि हम सब शुद्ध होते हैं पहले से, बट यहाँ आने के बाद या फिर गलत लोगों से मिलने के बाद हम बिगड़ते जाते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा स्कूल में, कोई भी बच्चा पहले से बिगड़ा हुआ नहीं होता है, पहले उसकी संगत गलत होती है, वो गलत लोगों से संपर्क में आता है और फिर वो बिगड़ता है। इसी तरह से हम लोग नेचुरली अगर आप देखें तो हम बहुत प्योर हैं, बहुत अच्छी तरह से हम सब कर सकते हैं, बट हम गलत चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कोई आलस से इन्फ्लुएंस हो जाता है, या फिर कोई किसी को चीजें पोस्टपोन करने की आदत हो जाती है। तो ये सब चीजों की वजह से हम बिगड़ जाते हैं बाद में, है ना। या फिर किसी के बारे में गलत बात करना, किसी आई मीन फॉर इन योर वर्ल्ड, किसी स्टूडेंट के बारे में, किसी टीचर के बारे में बैड माउंटिंग करना किसी दूसरे के साथ, करेक्ट। है ना। या फिर चीजें पोस्टपोन करना कि ठीक है एग्जाम अभी 3 महीने दूर है, बाद में पढ़ाई चालू करता हूँ, अभी 2 महीने बाकी है, देयर इज 1 more month लेफ्ट, 1 more week लेफ्ट, अभी 2 दिन बचे हैं, अभी 2 घंटे बचे हैं, और तब हम पढ़ाई करते हैं, है ना। बहुत लोग आई कैन श्योरली से कि बहुत लोग रिलेट कर पाते हैं इससे, कि हम बहुत लास्ट तक चीजें पोस्टपोन करते हैं, और लास्ट में जाके जब भागदौड़ होती है तब हम चीजों पे एक्शन लेना चालू करते हैं। तो दिस इज हाउ द वर्ल्ड ट्रिक्स यू। इसलिए आपको आपकी जो क्वालिटीज है बहुत अच्छे से डेवलप करनी है। तो इसलिए आपको आपका पर्सनालिटी जो होता है वो अच्छे से बनाना होता है, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटीज ये सब आप में आ सकती है। ठीक है सर। जो बुक आप बोले हैं बुक लिखना है, तो वो बुक में लाइक व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट in our book we have to write qualities, what qualities actually we are, what qualities we are acquiring in our life, that will be book of our life, है ना। और करेक्ट। at the end of our life when God will see that book he will see अरे क्या किया, अरे क्या किया ये, इसने पूरा लाइफ क्या किया, दूसरों के बारे में बैड माउथिंग किया, इसके बारे में ऐसा करेक्ट। बोला, उसके बारे में ऐसा बोला, पूरा लाइफ इसने कोई काम ही नहीं किया, लेजीनेस, बस पूरा लेजी था ऑल द लाइफ। वेरी वेरी वंडरफुल एस्पेक्ट सर। आई वांटेड टू आस्क, आप जो बोले ये पर्सनालिटी और लाइक व्हाट इज दिस पर्सनालिटी, आप जो बोले आई कुड नॉट गेट। पर्सनालिटी एक्चुअली जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि पर्सनालिटी के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज। सो बट व्हाट इज पर्सनालिटी सर? पर्सनालिटी का मतलब क्या है? और we पर्सनालिटी, can we ask the student this question to our students? या दैट वुड बी ग्रेट। स्टूडेंट्स चलो स्टूडेंट्स कैन राइट फटाफट, इन कमेंट बॉक्स। ओके चैट बॉक्स में टाइप करो, व्हाट डू यू मीन एक्चुअली फ्रॉम पर्सनालिटी, वर्ड आपका पर्सनालिटी। डेफिनेशन जो होगा पर्सनालिटी का वो बताइए, आपको क्या लगता है पर्सनालिटी क्या होता है? मेरा भी टाइप करता हूँ सर। somebody is telling an influential, टू बी कृष्णा कॉन्शियस। ओके। somebody is telling an influential person, somebody is telling qualities of a person, और इमेज इन सोसाइटी। yes our images, you are able to see, yes. Chaitanya is telling habits, Shreya is telling qualities of person, Pooja is telling different qualities of a person, character that make him different from other people. Okay. Shreya is telling it's our behavior. Okay. Pranav is telling values of a person in life. Vaishnav is telling good character, respect for elder. Okay, sir. These are the answers. Now you tell us. So the answers are quite impressive actually. A lot of you didn't give, very blunt or materialistic answers. The answers are really deep and, serious answers. So I really appreciate the kind of crowd we have here. So congratulations on that, Amit sir. Very good, I can say a cream class of people are here. So it's very right forum to have this discussion. Thank you, sir. I'm sure they'll be able to understand what I'm trying to, impart. So basically, I'll say the personality is made up of 3 main qualities. उनका परसेंटेज कम ज्यादा सब में हो सकता है, बट जो मेन 3 क्वालिटीज है उनसे ही हर एक का पर्सनालिटी बना है। सो वो 3 क्वालिटीज है, मोड ऑफ गुडनेस, जिसको मराठी या फिर संस्कृत में सत्व गुण बोलते हैं। सेकंड इज मोड ऑफ पैशन, जिसे रजोगुण बोलते हैं। एंड द थर्ड इज मोड ऑफ इग्नोरेंस, जिसे हम तमोगुण बोलते हैं। सो हर किसी का जो पर्सनालिटी टाइप है इन 3 में ही बटा हुआ है। हम देखते हैं कोई कोई लोग गुडनेस में रहते हैं, कोई मतलब बहुत
अच्छे सब क्वालिटीज होते हैं उनमें, है ना. I'll just share my screen, I mean, just a moment. Yes. सो इन शॉर्ट अनुराग सर ने बताया कि 3 टाइप के पर्सनैलिटीज है, ठीक है. यानी पर्सनैलिटीज क्या है, तो क्वालिटीज पहले उन्होंने बताया, और अब बताया कि 3 टाइप के पर्सनैलिटीज है. ओके. वेरी ईगर टू नो अबाउट द 3 पर्सनैलिटीज एंड आई वांट टू सी मेरा कौन सा है उसमें. Sure, just a moment. Yeah. So can you see my screen? Just a second. Yes, sir. Yes. Yeah. So if you'll see, we'll start from ignorance. तो जो ignorance वाले लोग होते हैं, जहाँ पे if the students can take screenshot or they can note down the meanings of the meaning of mode of ignorance. So here you'll see the people or the students in the mode of ignorance, they are influenced by nidra, that is sleep, alasya, that is laziness, and pramada, that is madness. So these are the 3 qualities of mode of ignorance. ये लोग बहुत लेजी रहते हैं, काम को पोस्टपोन करना चाहते हैं, सोते बहुत हैं, इनको नींद बहुत प्यारी है, रात को देर तक जगेंगे और सुबह बहुत देर तक सोए रहेंगे. सर ये लोग इनअटेंटिव रहते हैं. यस, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में आ सकते हैं सर. श्योर. बहुत सारे ये लोग जो होते हैं आगे जाके इनको मतलब इनिशियली नहीं बट बाद में जाके इनको इंटॉक्सिकेशन मतलब शायद नशा वगैरह के भी आदत लग सकती है. बिकॉज इस मोड का खासियत ये है, मोड ऑफ इग्नोरेंस का, कि ये लोग बाद में जाके बहुत मतलब नीचे तक गिर जाते हैं. ये लोग ज्यादा सोचते नहीं है, पहले एक्शन कर देते हैं फिर सोचते हैं, फिर बहुत पैनिक रहते हैं. अरे अरे अरे, पूरा सेमेस्टर पूरा साल निकल गया, पढ़ाई नहीं किया, लास्ट के 2 दिन 2 हफ्ते में उनको सब खत्म करना होता है. इसलिए ये लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं, फियरफुल रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, है ना. आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग या फिर स्टूडेंट्स हमारे आसपास रहते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं. देन देयर इज नेक्स्ट कैटेगरी व्हिच इज मोड ऑफ पैशन. ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं इनको बहुत कुछ करना होता है लाइफ में. हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो 5th स्टैंडर्ड से ही जेई का पढ़ाई चालू कर देते हैं. कुछ पेरेंट्स भी मोड ऑफ पैशन में आ जाते हैं, जो अपने बच्चे को और ज्यादा पैशन में डाल देते हैं कि बच्चा 5th 6th स्टैंडर्ड में तभी से उसको पूरा आईआईटी का पढ़ा रहे हैं, जेई के एंगल से मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं. तो ये लोग बहुत मतलब ज्यादा एक्शन पे ध्यान देते हैं. ये लोग सोचते हैं बट इतना नहीं सोचते. जैसे हमने देखा कि इग्नोरेंस वाला बंदा बिल्कुल नहीं सोचता है, एक्ट करता है सीधा. तो पैशन में जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा सोचता है, पार्शियल थिंक करता है और फिर एक्ट करता है. ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, इनको लाइफ में मतलब सब चाहिए होता है. इनको बॉडी भी बनानी है, इनको दे वांट ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, उनको बड़े बड़े डिग्रीज भी चाहिए होता है, उनको सब चाहिए होता है लाइफ. दे आर वेरी एम्बिशियस एंड दे लाइक टू शो अदर्स. ये लोग को कुछ करके दूसरों को दिखाना होता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये खुद के लिए नहीं कर रहे होते मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादा करके दूसरों के लिए ये सब कर रहे होते. इसलिए उनमें प्राइड बहुत होता है. दे आर वेरी प्राउड. बहुत ऐसे मतलब बोलते ना कि हमेशा आसमान में देखते, नीचे जमीन पे नहीं रहते वो लोग. कुछ लोग होते हैं ऐसे, हम देखते हैं. एंड दे आर इंडिविजुअल प्लेयर्स. ये लोग जैसे आप देखेंगे कोई कोई बच्चे होते हैं जो इतना पैशनेट होते हैं स्टडी के बारे में कि दे डोंट वांट टू शेयर देयर नोट्स और देयर थॉट्स टू अदर्स. बाकी लोग से ज्यादा बात भी नहीं करेंगे, काम से काम, अपना अपना पढ़ाई भला मैं भला बस. तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मोड ऑफ पैशन में आते हैं, जो लोगों को मतलब संग और तृष्णा, ये लोगों की जो तृष्णा का मतलब होता है प्यास, ये लोगों की प्यास बहुत ज्यादा होती है, ये प्यास है बड़ी, उस कैटेगरी वाले लोग होते हैं. तो ये होते हैं मोड ऑफ पैशन वाले लोग. एंड देन विल सी द थर्ड क्वालिटी, दैट इज मोड ऑफ गुडनेस. तो मोड ऑफ गुडनेस वाले लोग होते हैं जिनको मतलब दे लाइक टू बी क्लीन, दे आर वेरी रेगुलेटेड इन देयर लाइफ. मतलब वो सुबह 7 भले ही 7 बजे उठते हो, 7 बजे उठ ही जाएंगे. मतलब कोई अगर उसको देख भी नहीं रहा तो भी बता सकता है कि अच्छा अगर ये अक्षय है तो अक्षय 10 बज रहे मतलब वो अभी पढ़ाई कर रहा हो, ये उसका पढ़ाई का वक्त है. तो ये लोग रेगुलेटेड रहते हैं लाइफ में. इनका हर चीज का एक टाइम फिक्स है, कब क्या करना है सब पता है. और ये लोग कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचते हैं. जैसे जो व्यक्ति इग्नोरेंस में है वो करने के बाद सोचता है, ये व्यक्ति करने के पहले 2 बार सोचते हैं और फिर कुछ भी काम करते हैं.
तो ये इनका खासियत होता है, ये लोग बहुत सोच विचार करके कोई भी चीज करते हैं। ये मुंह खोलने से पहले 2 बार सोचते हैं कि मैं जो बोलूंगा वो सामने वाले के लिए अच्छा है कि नहीं है ना। दे वोंट डू बैड माउथिंग, किसी के बारे में गलत बात नहीं करेंगे। एंड दे आर वेरी क्रिएटिव बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्वालिटीज। उनका मतलब ब्रेन समहाउ बहुत क्रिएटिव रहता है। देन दे आर वेरी सबमिसिव, दे आर टॉलरेंट। इनके फ्रेंड्स भी बहुत होते हैं ये लोग, मतलब मोड ऑफ पैशन वाले के भी फ्रेंड्स ज्यादा होते हैं, बट इनके जो फ्रेंड्स रहते हैं ये इनकी इन क्वालिटीज को देख के इनके फ्रेंड्स बनते हैं। मतलब दे कैन कम इन द कैटेगरी ऑफ ट्रू फ्रेंड्स, यू कैन से। दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड ओबीडिएंट, सबका अच्छे से सुनते हैं। दे लाइक टू फॉरगिव अदर्स, व्हिच इज अ वेरी ग्रेट वर्च्यू इफ you know forgiving others. And most importantly they are like, you know, I mean they have a lot of power, but at the same time they are very calm. They are like a dam. आपने देखा होगा फ्लड और डैम में एक ही डिफरेंस होता है कि डैम कंट्रोल्ड होता है और फ्लड को कंट्रोल नहीं होता है, ब्रेक्स नहीं होता है, इसलिए वो सब सब तहस नहस कर देती है। उसी चीज को अगर हम कंट्रोल कर ले, डैम में लिमिट कर दे उसको, तो उसका बहुत यूज होता है। हम देखते हैं कि डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, उस पानी को हम साल भर तक रेगुलेटेड वे में यूज कर सकते हैं। बट वही अगर फ्लड है तो फ्लड बहुत सारा पानी आ जाएगा एक साथ, सब तहस नहस कर देगा और बाद में कुछ उसका उपयोग भी नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह जब हम कंट्रोल वे में रहते हैं उसको, जैसे जितना बड़ा गाड़ी हो, आपने देखा होगा अगर आप किसी किसी को कार्स के बारे में ज्यादा पता है, आपको पता होगा कि जितना पावरफुल कार होता है उतना ही पावरफुल उसका ब्रेक भी चाहिए होता है ना। अगर किसी का 150 सीसी का बाइक है तो उसको डिस्क ब्रेक चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो इतना फास्ट भागेगा तो किसी को उड़ा देगा, वक्त पे रुक नहीं पाएगा, कुछ भी मतलब एक्सीडेंट कर बैठेगा। तो सिमिलरली मोड ऑफ गुडनेस वाले लोगों को पता होता है कि ताकत है उनमें, बहुत ताकत है, एट द सेम टाइम दे नो वेयर टू स्टॉप। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो पर्सनालिटी आपने पूछा था अमित सर, तो बेसिकली ये 3 क्वालिटीज होती है सब में जिनसे हर एक का पर्सनालिटी बनता है, हम देख सकते हैं। तो we'll do a simple exercise. How many of you know the story of आप में से कितने लोगों को वो कहानी पता है टोपी वाले की, जो एक पेड़ के नीचे सो जाता है जिसमें बहुत सारे बंदर होते हैं और उसकी क्या बोलते हैं उसको, टोकरी में बहुत सारी टोपियां होती है। Okay, I can see about 11, 12. Okay, a lot of people know about this story. So क्या लगता है आपको, जो उसने एक्ट किया था उस स्टोरी में, कि वो पहले सोचता है क्या करूं, बाद में वो क्या करता है, अपना ही कैप निकाल के टोकरी में डाल देता है, तो सब लोग उसे फॉलो करते हैं, है ना। सब लोग अपना, सब बंदर अपना टोपी निकाल के उस इसमें डाल देते हैं। तो उसमें अगर हम देखें, आप उस कहानी के माध्यम से अगर मैं आपको बताना चाहूँ ये 3 लोग कौन होते हैं, ये 3 पर्सनैलिटी टाइप्स कौन होते हैं, तो हम देख सकते हैं कि अगर वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता वो टोपी वाला, तो वो क्या करता, रोता गिड़गिड़ाता, अरे क्या हो गया, क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा, मतलब या तो फिर रोते रोते घर चला जाता कि अरे यार मेरा तो नुकसान हो गया, है ना। दूसरा पैशन वाला बंदा क्या करता, वो बंदर से टोपी छीनने का ट्राई करता, दिमाग लगाता अपना कि नहीं मैं पेड़ पे चढ़ के एक एक बंदर से खींचने का ट्राई करता हूँ, या फिर मैं उनको पत्थर मार के देखता हूँ, उनको मतलब कुछ तो और करता हूँ। बट नहीं, ये सब ये भी पैशन में आएगा, है ना। ही इज नॉट यूजिंग हिज ब्रेन, पैशन वाला ब्रेन यूज नहीं करता है, हाफ यूज करता है, पार्शियल यूज करता है, तो इसलिए वो भी उसका आंसर नहीं है। बट जब वो गुडनेस में आता है, वो सोचता है कि अरे यार, गुडनेस वाला सोचता है, इजंट इट, हमने अभी देखा, तो कोई भी एक्शन करने से पहले सोचता है। तो जब उसने सोचा कि अरे ये लोग मैं जो कर रहा हूँ वही रिपीट कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं कैप को उतार के उस टोकरी में डाल दूं, तो ये सब लोग भी वही कॉपी करेंगे। एंड समथिंग सिमिलर हैपेंस, वो उस टोकरी में डालता है और उसके बाद वही होता है जो मतलब उसको एक्सपेक्टेड था, है ना। तो सब सब बंदर अपना टोपी उसमें डाल देते हैं, जिसके वजह से उसको मतलब बच जाता है उस दिन को, like that. So this is about it. Amit sir, you can continue. वंडरफुल सर, बहुत इम्पोर्टेंट चीज पता चली है कि दिस 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज एज यू टोल्ड फ्रॉम भगवत गीता, दैट इज गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, ये 3 टाइप के पर्सनालिटीज होते हैं। Correct. तो मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या ये तीनों एग्जैक्ट है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं टोटली मैं गुडनेस में हूँ या टोटली पैशन में हूँ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, या यहाँ पे मिक्सचर भी होता है? करेक्ट अमित सर, तो जैसे मैंने कहा कि इसमें मिक्सचर बहुत होता है। हम में से बहुत लोग
पूरा इग्नोरेंस में तो नहीं रहते हैं, है ना। सम टाइम वी आर इन गुडनेस, सम टाइम वी आर इन पैशन, सम टाइम हम इग्नोरेंस में रहते हैं। तो आप देखेंगे हर चीज इन तीन क्वालिटीज में डिवाइडेड है। अगर आप रेडियो भी देखेंगे तो रेडियो पे सुबह भगवान के गाने बजते हैं, है ना, थोड़ा गुडनेस वाले गाने बजेंगे। दोपहर में आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा पैशन वाले गाने बजेंगे कि ये चाहिए वो चाहिए, तो वो सब बजेंगे। और रात को देखेंगे अगर आप, तो एकदम पूरा डैन डैन डैन, रॉक एंड दे रोल। वांट ऑल यस। जैज म्यूजिक, रॉक म्यूजिक रात को, वो सब इग्नोरेंस वाले सुनेंगे। तो इसी तरह हम देखेंगे हर चीज इन तीन गुणों में डिवाइडेड है। बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमंस, वी आर नॉट इन वन पर्टिकुलर मोड एट ऑल द टाइम्स, है ना। तो हमारे जो पर्सनालिटी टाइप होता है वो भी इनका मिक्सचर होता है। अच्छा, एक कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी टाइप है और बाकी उसमें कुछ क्वालिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल गुडनेस का है, कुछ क्वालिटीज पैशन का हो सकता है, कुछ क्वालिटीज इग्नोरेंस का होता है, करेक्ट? करेक्ट, that's correct, that's how it is Okay, majorly. great. So तो I would like to just have a poll here for all students. ठीक है, मैं लॉन्च कर रहा हूँ वो poll, आप लोग इस पे क्लिक कीजिए। इस क्वेश्चन में you can select any one of the three qualities. आप में कौन सा मेजर, यानी मेजर फॉर्म में कौन सा वाला है, ठीक है। तो मैं लॉन्च कर रहा हूँ जस्ट टू नो। चलो देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा अभी ये क्वेश्चन। यू कैन सिलेक्ट आपका कौन सा है, आपको क्या लगता है? ओके, सोच के, ऐसा गड़बड़ नहीं कुछ, ठीक है। थिंक अबाउट दे, कौन सा गुण ज्यादा है बाबा, आई एम इन गुडनेस और आई एम इन पैशन और आई एम इन इग्नोरेंस। दे आर आंसरिंग वेरी फास्ट सर। लगता है उन्होंने जब जब आप स्लाइड शेयर कर रहे थे तो उससे उनको आइडिया है बहुत सारे लोगों को। ओके ग्रेट, 28 have answered, 35 have answered, फटाफट फटाफट। और यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है पैशन को। 25% मिला है गुडनेस को, 60% के आसपास है पैशन। चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे आंसर्स आ रहे हैं वहां पर सोचिए और फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। जो लोग प्रेजेंट है, जो लोग प्रेजेंट नहीं वो नहीं आंसर कर रहे शायद से, इसलिए आई जो थिंक। लोग इग्नोरेंस में वो नहीं बता पा रहे शायद से। ओके, फटाफट 10 लोग अभी भी बाकी है। मैं 10 तक गिनूंगा और फिर खत्म करूंगा, ठीक है। देन आई विल शो द रिजल्ट टू ऑल ऑफ यू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, गो। ठीक है, तो रिजल्ट आप सबको दिखेगा। एक मिनट, एंड करता हूं पोल को। एंड किया एंड आई एम शेयरिंग द रिजल्ट। आर यू ऑल एबल टू सी द रिजल्ट? Yes, तो majority of the यस, ओके। attendees go with passion, Raju Guna. ओके, ठीक है। तो यहाँ पर I'm glad that they are honest and transparent enough to share it. 16% लोग ट्रांसपेरेंट है, 9 लोग मैं देख रहा हूँ वो सामने से बता रहे कि हम इग्नोरेंस में। So I'm really happy that they are so transparent, इतने honest लोग हैं आपके यहाँ पे। तो ये तीनों में से हमें क्या करना चाहिए फिर? व्हाट वी हैव टू आइडियली इनकलकेट इन आवर लाइफ? अनुराग सर, आपको क्या लगता है, एंड हाउ? बिकॉज तो जैसे मैंने बताया आपको कि कोई भी चीज अगर अचीव करनी हो, सो ओके, इन 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 द लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट्स आई विल टेल। सो एज अ स्टूडेंट अगर मुझे कुछ अचीव करना है, कुछ चाहिए, है ना, अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे कॉलेज में लैंड अप करना है, एट द सेम टाइम आई हैव टू बी अ मैन विद प्रिंसिपल्स, है ना। मुझे मेरे प्रिंसिपल्स को भी साथ में रखना है, मेरे तत्व जो है मुझे उनको भी लाइफ में बहुत मतलब महत्व देना है। एट द सेम टाइम आई हैव टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ माय करियर एंड माय प्रोफेशन इन फ्यूचर। तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति पैशनेट रहता है, तो पैशन का तकलीफ क्या है ना, ये लोग रॉकेट की तरह होते हैं, बहुत फास्ट ऊपर जाते हैं, बट रॉकेट फिर उतना ही फास्ट क्या करता है, नीचे भी आता है ना। तो पैशन का प्रॉब्लम है कि ये लोग ऊपर भी फास्ट जाएंगे करियर में, अरे नहीं ये करना है वो करना है, रात को 2 बजे तक प्लान करेंगे कि सुबह 5 बजे उठना है कल से, और नेक्स्ट डे 9 बजे उठ के बोलेंगे अरे यार नहीं उठ पाया। तो ये लोग होते हैं जो मोड ऑफ पैशन में होते हैं। दूसरे होते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये लोग कुछ कर ही नहीं पाते, मतलब छोड़ो यार, किसने देखा, कहाँ मिलने वाला है आईआईटी, है ना, 1000 इतना, मतलब दे लुक एट द स्टैट्स कि 1.5 लाख लोग अप्लाई करते हैं, इसमें से इतने लोग ही सिलेक्ट होते हैं। सो उनको उस झंझट में नहीं पड़ना है। तो इसलिए सबसे बेस्ट होता है टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस। अगर आप सत्व गुण में रहते हैं तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, बी इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, योर फैमिली, योर रिलेशनशिप्स, योर प्रोफेशन, योर स्टडीज, योर करियर, एवरीथिंग यू कैन अचीव if you're in the mode of business. So what I'll do is I'll share something which I have
to tell you how mode of goodness can be best. Just a moment. And we are at the end of our session. We'll have some questions. So Sure, yes, sure. अभी से questions आ रहे हैं. And we'll take the questions at the end. Sure, sure. Just a moment. Yes. I'm searching for that particular photo. Yeah, I got that one. I'll just share my screen. Just a moment. Yes. Yeah. So can you see my screen? Yes, sir. Just a moment. There's some disturbance. Okay. So mode of goodness. I'll tell you very simply. It's A, B, C, D, E. So these are the 5 alphabets you can remember to understand how you can maintain mode of goodness. Okay, so I'll say A. Association of saintly whose hearts are filled with positive qualities of love, compassion and devotion. So आप अगर देखेंगे कोई भी चीज आपको अगर चाहिए हो, जैसे घर वाले भी बोलते हैं अरे वो पढ़ाई करता है उसके साथ रहा कर, है ना, अरे वो अच्छा लड़का है उसके साथ रहा कर, या फिर नेगेटिव भी बोलते हैं कि अरे उसको मैंने कल कुछ गलत करते हुए देखा था उसके साथ मत रहे, है ना, वो पढ़ाई नहीं करता, उसको फेल होते रहता है उसके साथ मत रहे. तो अगर आप देखेंगे लाइफ में बहुत बड़ा चीज होता है, जिसके साथ रहते हैं आप वैसे बन जाते हैं. तो देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश कि इफ यू वांट टू नो अ पर्सन कि वो कैसा है, तो आप देखिए कि वो किन लोगों के साथ रह रहा है, वो लोग जैसे रहेंगे वैसा ही वो रहने वाला है ना. तो मोड ऑफ गुडनेस जो होता है उसके लिए एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू एसोसिएट विथ people who are having mode of goodness, isn't it? Second, I'll say books. So books का मतलब होता है study and application of wisdom that's there in the books. तो इसके लिए आपको जो I'll say पढ़ना है, you have to be very choosy about what you read, isn't it? जैसे हम खाने के बारे में चूजी होते हैं, मुंह में जो जा रहा है उसके लिए हम बहुत चूजी होते हैं कि मुझे यही चाहिए, आई वांट चीज बर्स्ट वाला ही पिज्जा चाहिए, मुझे थिन क्रस्ट नहीं चाहिए, या फिर मुझे हैंड टॉस चाहिए, आई वांट एक्स्ट्रा बारबेक्यू सॉस. आई मीन इतनी छोटी छोटी हम इतनी डिटेलिंग करते हैं जब खाने की बारी आती है. बट वेन वी कम टू रीडिंग वी आर नॉट सो सिलेक्टिव. अरे कुछ भी पढ़ लो यार, कोई भी नॉवल उठा के पढ़ लो, किसी का भी बुक पढ़ लो, कुछ भी कर लो. नहीं, you have to be very selective in terms of what you want to read or what you are reading, what you are holding, because it's like food for your mind, your brain. जैसे हम बॉडी में मुंह के द्वारा जो डाल रहे हैं उसके लिए इतना सोचते हैं, उसी तरह आंखों के थ्रू हम जो पढ़ के जो दिमाग को दे रहे हैं उसके बारे में बहुत चूजी रहना है. So always reading good literature. So that's B. C is chanting and meditation. So this is something I'll tell you again about in some time, ki how chanting is helping me. It has helped me maintain mode of goodness at most of the times. So when it comes to you can say meditation, so सिर्फ meditation करूंगा बैठ के तो शायद मैं सो भी जाऊंगा, है ना. But at the same time, if I do meditation while chanting particular authorized mantras that are given in the scriptures, it will help me maintain mode of goodness even more. Then there is diet and exercise. It is said just like we purify our body with water, इसलिए हमारे कल्चर में रोज नहाना बोला गया है, इसी तरह डाइट जो होता है एंड एक्सरसाइज स्पेशली ऐसा बोलते हैं कि पसीने से भी बॉडी शुद्ध होता है. ऑफ कोर्स पसीना मतलब गर्मियों में बैठ के जो पसीना आ रहा है वो नहीं, अगर आप पसीना बहा रहे हो जो वर्कआउट करके, है ना, तो उससे भी बॉडी आपका प्यूरिफाई होता है. इसलिए हमारे मेहनत का योगा पसीना के बारे में बोला गया है. सॉरी अमित सर, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मेहनत का पसीना. ओके, करेक्ट, मेहनत का पसीना. तो डाइट एंड एक्सरसाइज. तो डाइट में भी यू हैव टू बी अगेन वेरी चूजी. जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बुक्स के बारे में चूजी रहना है, डाइट में भी हम कौन से प्रकार का फूड खा रहे हैं. इफ इट्स फ्रूट्स एंड मिल्क एंड ग्रेन्स एंड सीरियल्स, वेजिटेबल्स जो नेचर ने मदर नेचर ने खुद से दिए हमको, वो अगर हम लेते हैं, इट्स वेरी इजी टू मेंटेन मोड ऑफ गुडनेस. वही अगर आप बहुत स्पाइसी, बहुत तीखा, बहुत खट्टा ऐसी चीज अगर आप खा रहे हो तो आप पैशन में जाएंगे, फिर मोड ऑफ गुडनेस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना. एंड मेनी पीपल, आई मीन बहुत लोग नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते हैं. तो होता क्या ना, उससे आपको गुडनेस मेंटेन करने में थोड़ी तकलीफ होती है. ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बट प्रॉब्लम होती है ना. जितना एक
वेजिटेरियन और जो डाइट कॉन्शियस बंदा है वो जितना अच्छे तरह से मूड ऑफ गुडनेस मेंटेन कर सकता है, वो जो नॉनवेज खा रहा है वो उतना अच्छे से मेंटेन नहीं कर सकता। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड कंसाइज अबाउट योर डाइट एंड एक्सरसाइज, कि आप क्या खा रहे हो और कितना क्या वर्कआउट कर रहे हो। इससे भी आप मूड ऑफ गुडनेस में मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हो। And fifth is environment, avoiding unfavorable ambience and accepting a spiritual ambience। जैसे अगर मुझे पता है कि उस ग्रुप में जाने से वो लोग कुछ अलग ही लेवल की बातें करते हैं, मगर उनमें जाके रहूंगा तो शायद कुछ और ही दिमाग में कचरा जाएगा, रात को भी वही सोचूंगा, पढ़ाई में भी वही आएगा दिमाग में। सो बेटर टू अवॉइड सच काइंड ऑफ पीपल एंड एनवायरमेंट, and rather get into an environment wherein you will be more susceptible, wherein you will be more I'll say coping with your studies and with all your good qualities. So I'll say these are the five, A, B, C, D, E. These are the five things which can help you boost the mode of goodness. And, to go further, I was mentioning you about C, chanting. So Harvard University ने बोला है, it's a research, it's a proven research कि जो लोग मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, they are in a relaxed state of mind with alertness. रिलैक्स है, एट द सेम टाइम अलर्ट भी है। जो इग्नोरेंस में होता है वो सिर्फ रिलैक्स होता है, रिलैक्स ही रिलैक्स होता है, वो अलर्ट नहीं होता है। और जो लोग अलर्ट होते हैं, रिलैक्स नहीं होते, वो हाइपर अलर्ट होते हैं। जैसे अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, सो देयर इज हाइपर एक्टिव जोन। ये लोग एक टाइम के लिए बहुत एक्टिव रहेंगे, रात को पूरा नाच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं, बाद में वो सोया रहेगा सुबह तक, बट रात को बहुत हाइपर एक्टिव रहेगा, है ना। दे विल बी वेरी एक्टिव, एक्स्ट्रा एक्टिव, जो है मतलब इसको, इस एक्टिव को पॉजिटिवली मत लेना। हाइपर एक्टिव या फिर बीइंग टू मच एक्टिव इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। सो देयर आर पीपल whose brain wave frequency range from 13 to 18, they are in hyperactive zone। and there are people जिनका brain wave frequency 8 से भी नीचे होता है, they are always sleepy, हमेशा खाएंगे पिएंगे फिर सोए रहेंगे, बहुत ज्यादा उनको पढ़ाई का मन नहीं है, बिंज वॉच करेंगे, रात को लेट तक सोशल मीडिया पे रहेंगे, ये सब एकदम आलसी लोग हैं। so they are, their brain wave frequency varies from 1 to 8, but those who do mantra meditation, it's proven that their brain wave frequency ranges from 8 to 13, which is a very good state to study, to understand, to learn something new, to develop new qualities, or to be a better decision maker in life, or even an everyday decision they can make very well if you are in this particular frequency of 8 to 13. So to maintain this particular frequency, it's very important that you chant, that you do mantra meditation. I am sure Amit sir must have told you something about it. So if you do that, that's going to be a really great help for you to maintain mode of goodness. At the same time, be very good in terms of your, say, studies, your relationships, dealing with your friends and families, taking care of this body, isn't it? So everything is going to be very streamlined with this. So yeah, I hope I didn't had a lot of time of yours. Yes, Amit sir. Great. Thank you very much, Anurag sir. Wonderful description. Just a second. Okay, yeah. So wonderful description. Thank you very much. So with this, I think our time is over, sir. We have only 7 minutes remaining. Can I ask you one question? कि हम लोग just एक last question है मेरे पास कि sure. अब I can understand, ठीक है, what is my personality type, but इसके साथ में टाइम को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। अगर मेरे में गुड क्वालिटीज भी है और मेरे अंदर बैड क्वालिटीज भी है, बट आई सी दैट सम आर एबल टू मैनेज देयर टाइम, सम आर एबल टू नॉट। सो कैसे पता चले टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा इन शॉर्ट इफ यू कैन स्पीक अबाउट इन 5 minutes or so? Sure. So about time management, I must say it's all about how you look at time, how you segregate the actions or the plan of action you have। आपके जो टास्क है वो आप कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है बट एट द सेम टाइम वो अर्जेंट नहीं होती है। I'll just share a matrix that I have, just a moment।
So can everyone see my screen? Yes, yes. I hope it's visible. Yeah. So if you see, you can take even a screenshot of this particular, photo or slide, because it tells you how there are four ways, or there are four quadrants in which we can divide our work, divide our task, and we can manage time really well. So if you see in quadrant one, it's quadrant of action. तो क्राइसिस एंड डेडलाइंस, ब्रेकडाउन एंड मेंटेनेंस, हेल्थ क्राइसिस और हाई अटेंशन, तो इनके लिए इनका अर्जेंसी भी हाई होता है, इंपॉर्टेंस भी हाई होता है. जैसे घर में अगर कोई बीमार है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को अटैक आया, स्ट्रोक आया, कुछ भी हो गया, तो ये चीज इंपॉर्टेंट भी है कि हम जल्दी से उनको ट्रीट करें, और अर्जेंट भी है, अभी के अभी ले जाना है. इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट भी ले जाना है, तो इसलिए वो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट में आते हैं, जिसका लिए बोला गया है कि डू नाउ, अभी के अभी उनपे आप मतलब एक्शन लो, है ना. तो इसलिए ये क्वाड्रेंट वन जो होता है, ये इमीडिएट जो हमको चीजें करनी है उसमें आता है. जैसे आपका एग्जाम है, 2 दिन में एग्जाम है आपका, जितना भी पढ़ाई हुआ है उसके साथ कोप अप करके आपको जाना है, तो आपको डू नाउ, यू हैव टू डू इट राइट अवे. सेकंड इज क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी. इसमें आप डिसाइड कर सकते हो, है ना, इसमें आप डिसाइड करना है, बिकॉज ये चीजें इतनी अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है ना. जैसे कोई सर्टिफिकेशन करना है, कोई चीज हमको सीखनी है, कोई ट्रेनिंग है, कोई एम्पावरमेंट प्रोग्राम है ना, या फिर कोई भी अच्छी आदत है हमको चाहिए, तो ये चीजें अर्जेंट नहीं है. हमें अर्जेंटली मोड ऑफ गुडनेस डेवलप नहीं करना है, isn't it? But at the same time it's important to have mode of goodness in life. तो ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, जिनको हम बोल सकते हैं क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी. इसका काम, इसमें हमको क्या करना होता है, वी हैव टू डिसाइड. देन देयर इज मोड ऑफ then there is third quadrant which is urgent but not important. इसमें जो चीजें होती है वो तुरंत करनी होती है बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे कोई फोन कॉल है, कोई व्हाट्सएप टेक्स्ट है ना, अचानक कोई तो अगर मिलने आ गया, तो इनसे मिलना तो पड़ेगा, अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है. तो ऐसे में आप डेलीगेट कर सकते हैं. घर में अगर अचानक से कोई आ गया, आप दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, you can always tell your mother to talk to them, or someone else you can find. So you have to delegate these things. या फिर फोन कॉल आ रहा है, कुछ है आपका अर्जेंट, तो आप बाद में भी बात कर सकते हो, isn't it? तो ये चीजें अर्जेंट है, एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें आपको डेलीगेट करना है. डेलीगेट मतलब ये चीजें आपको किसी और से करवा के लेनी है, किसी और को ट्रांसफर करना है. एंड फोर्थ इज क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट. सो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो चीजें होती हैं जो ना इंपॉर्टेंट होती है और ना ही अर्जेंट होती है. तो बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती है कि जो चीजें हमारे लिए ना इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, बट हम करते हैं वो. इसकी वजह से होता क्या है, बहुत बार हम लोग अनप्रोडक्टिव चीजों में चले जाते हैं. जैसे बहुत लोग दे प्ले गेम्स जो अर्जेंट नहीं है ना ही इम्पोर्टेंट है. मैं ये नहीं कह रहा कि गेम मत खेलो, या फिर बिल्कुल भी कुछ रिक्रिएशन नहीं चाहिए आपको टू free yourselves of all the stress you have with studies. But there are students, there are people who play games for hours together, है ना. कोई the games are, what are they, I mean in those days it used to be Vice City and what, Call of Duty, all that, Condition Zero, Counter Strike, all that, or nowadays they have PUBG and all. So they get into games, they play for hours together, 3 4 6 घंटे लोग गेम्स खेलते हैं. They lose their good state of mind because of that. So these are the things which come under not urgent and not important tasks. So if you have to manage very you have to make good you can say use of your time, try to be in the mode of in the quadrant of quality, in the second quadrant, wherein you plan things in ahead. आप पहले अगर कोई चीज प्लान कर लेते हो तो बाद में वो अर्जेंट नहीं बनती है ना. जैसे अगर मुझे अमेरिका जाना है, मैं अगर वीजा मुझे 1 महीने बाद जाना है ना, तो आज वीजा तो नहीं लग रहा है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगर मैं आज से उसको बना के रखता हूँ, उसको रेडी रखता हूँ, तो शायद जिस दिन मुझे जाना है अमेरिका, मैं एयरपोर्ट पे वीजा दिखा सकता हूँ, isn't it? Similarly, if you do things in you can say beforehand, तो उसके वजह से आप क्वाड्रेंट 1 में बहुत बार नहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको इमीडिएटली कुछ भागदौड़ करनी है, isn't it? And even quadrant 3 is sometimes good, that you delegate the things, क्योंकि वो चीजें अर्जेंट है, at the same time important नहीं है, तो जिसमें आपको बहुत ज्यादा आपका टाइम डालने की जरूरत नहीं है. So this is what I have to say, Amit sir, in terms of you can say time management. I ate again a lot of time of yours. So yeah, अगर
आपके पास questions है, you can directly ask or maybe post them in comment box. Sir, before that, just you told about two things now today's session, very important two things. One thing was about the three personality types, that is goodness, passion, and ignorance. And second thing, you told about the time management, how we should utilize our time properly and where we waste our time. Those four quadrants, very important things, sir. I actually took screenshot of it, and all of our students, आप लोग देखिए कि how you can be in the zone of डिसाइडिंग योरसेल्फ. आपको आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आपका कौन से आप किस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकते हो, वो ट्राई करना चाहिए हमें. विद दिस आई हैव अ पोल सर फॉर स्टूडेंट्स, जिसमें 10 क्वेश्चंस है. ठीक है, 10 क्वेश्चंस है. ये क्वेश्चंस में जस्ट ऑल ऑफ यू कैन रीड द क्वेश्चन और सिलेक्ट करो कौन सा मोड है, गुडनेस है, पैशन है या इग्नोरेंस है. ठीक है, जो पर्सन का क्वालिटी लिखा हुआ है वो क्या करता है, वो गोल सेट करता है तो वो गुडनेस है या पैशन है, वो टाइम वेस्ट करता है तो वो गुडनेस है, पैशन है, इग्नोरेंस है. तो ऐसे कुछ 10 क्वेश्चंस है. सो ये क्वेश्चंस मैं लॉन्च कर रहा हूँ, फटाफट आंसर दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि हमारा टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है. सो वी हैव नॉट मोर देन 5 मिनट्स फॉर यू. फटाफट आंसर देना है. मैंने लॉन्च कर दिया है पोल. Read properly and whatever answer comes to your mind first, just click on that. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर्स आ रहे हैं. गुड. सो अभी 2 मिनट्स 19 सेकंड्स हुआ है. 3 मिनट्स होने पर मैं ऑफ कर दूंगा. ठीक है, and then we request Anurag sir to answer. Let's do one thing, Amit sir. I would like to hear from you as well. So, I mean, I'll correct if it's wrong. So you just go one by one. Okay, I will just read. Let me know if students are right. Okay. So first one is never setting goal. Yeah. So 2 seconds. 2 seconds. I have not ended the polling. So okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ. That's it. Yes. So should I share the result? Okay, I'm sharing. Yes, sure. So question first, never setting goal or setting goal and not sticking to them. So what do you say, Anurag sir? Are our students correct?
Yes, yes, they are correct in terms of this. परफेक्ट, ग्रेट. चलो एक मार्क दे दो अपने आप को जिसके आंसर राइट है. एक मार्क दे दो अपने आप को, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन. मूविंग अराउंड एंड सोशलाइजिंग टू मच टू फील security. Correct. They have got this one also right, because this is the quality we could see in the mode of, passion. So they are right. Passion. Yeah, moving around too much and yes. Okay, third, lower level of concentration, getting easily distracted by small things. Perfect. Again, this one is right. It's mode of ignorance. 83% ने सही आंसर दिया है. Very good. Next question, fourth, doing more than one thing at a time and accepting unrealistic deadline. एक जगह एक टाइम पे बहुत सारी चीजें और ऐसा डेडलाइन कि सर मैंने पूरा 2 साल पढ़ाई नहीं किया है, लास्ट 1 महीने में मैं पढ़ाई करके सर ऑल इंडिया रैंक 1 लाऊंगा, ठीक है. सो दिस इज पैशन. करेक्ट सर? या Correct. This one is also right. या पैशन. 64% लोग पैशन. ओके. Fifth, getting involved in everything to gain credit and popularity. मला नाव पाहिजे, credit पाहिजे. Yes. Correct. This one is also correct. Passion. Perfect. Indecisive and postponing decision. काय करायचं माहित नाही, है ना? Correct. That is also perfect answer. 81%. 81% students ने बोला. Wow, great. 7, thinking that no one else can manage my work if I am absent. यानी मेरे सिवा चीजें चलेगी नहीं, ऐसा सोचने वाला पर्सन. सर ये थोड़ा भी कंफ्यूजन है, आप बताइए. So thinking no one else can manage my work if I'm absent, it's in one sense, you can say taking too much responsibility of something or giving too much importance to oneself, that मैं ही कर सकता हूँ और किसी को दूंगा तो वो नहीं कर पाएगा. So this is mode of passion. So they have got it very perfect. Yeah, it's mode of passion. Yes. Okay. 8th, feeling difficulty to work with highly accomplished and great leaders. This I feel, हाँ, this I feel sir ये passion और ignorance दोनों चीजें हैं इसके अंदर. Correct. So यहाँ पे जो लोग होते हैं, they feel uncomfortable while working with accomplished and great leaders because they feel belittled. They have that inferiority complex in them, and this kind of behavior or this feature is found in the mode of ignorance as well as passion, I'll say. Passion वाले तो yes, passionate person he may have envy for others, है ना, इसीलिए वो उनके साथ वर्क नहीं कर पाएगा. Me is great. Passion वाला बोलता है me great है, बस मुझसे ज्यादा great कोई नहीं. So when he sees any great person, yeah, so correct. I think students have got it correct. 36% passion बोले, 45 बोले, तो I think दोनों सही है. Great. Mixed है. Yes. Yeah. So the 9th one is forgetting things are badly organized, unclean environment. तो ये तो सबको पता है. Yeah. These are the people in the mode of ignorance. Of course, some of you thought ये लोग goodness में है, that they are badly organized in unclean environment. Okay. They are not in goodness, they are fully in ignorance. ठीक है. और last question है, looking for too much perfection in work leading to micromanagement. So this sometimes is it's attribute of mode of passion, because they want to do everything at the same time. They want everything to be very perfect and precise and neat and clean, sab chakachak, spick and pan chahiye. So that's not something that happens in real world scenario, isn't it? So इसलिए ये लोग mode of passion से बहुत ज्यादा affected होते हैं. Of course ये goodness के थोड़ा करीब होते हैं. अगर ये बहुत ज्यादा micro management करना छोड़ दें, so they can very easily, it's very easy for them to go in the mode of goodness. Yeah, but the answer here is perfect. It's mode of passion. Yes, great. So almost all the answers they gave right. So I guess it's kind of, a testimony to you, first of all, and to the session that we had today. Yes. They all, could really understand it very well. Yeah. So I think अपना जो प्रोग्राम रखने का जो मोटिव था वो satisfy हो गया. All of them got it right. And with this, there is last one question only we'll take, sir, because हमारा time over. Sure. So the question here is, how do you, Pranjal has asked this question, how to make consistency in our work? हमारे वर्क में हम consistency किस तरह से रख सकते हैं? Okay, so work, I'm sure when speaking of work in your language, it must be about studies, right?
So how to, in short, maintain consistency in terms of your studies, if I have to rephrase it. So I must say, you have to understand your priorities. First of all, try to segregate all your activities, what you do, or your to-do list in these 4 quadrants. Then it will be very clear what you have to do immediately, what you can plan further, what you can delegate, and which are the things which you need not involve yourself at all into, isn't it? Like we talked about playing games for hours together, so that's something you need not indulge into, because that comes in quadrant 4, which is not important, not urgent. Yes. So apart from that, if I have to say how you can be consistent, the answer is in being in mode of goodness. Goodness, perfect About answer. which we talked a lot in the in a session, that simply by maintaining mode of goodness you can always be consistent. हमने देखा है, जैसे पैशन वाला बंदा 2 दिन कर पाएगा, तीसरे दिन चौथे दिन सोया रहेगा. इग्नोरेंस वाला तो 4 दिन सोया रहेगा, बट गुडनेस वाला करेगा भी और सोएगा भी. मतलब he'll get best of both worlds. वो बॉडी को भी आराम देगा, जब पढ़ाई करना है पढ़ाई भी करेगा, खेलने के टाइम पे खेलेगा भी, जब घर में हेल्प करनी है वो भी कर पाएगा, स्पोर्ट्स में भी अपना कुछ एम्बिशन है वो भी पूरा कर पा रहा है. सो दिस इज द फीचर ऑफ मोड ऑफ गुडनेस, कि आप इसमें आप सब कर सकते हो थोड़ी थोड़ी मात्रा में, एंड एट द सेम टाइम यू कैन बी वेरी यू कैन से यू कैन अचीव योर गोल्स, you can very clear in terms of your focus. So ये होता है how you can be consistent by being in mode of goodness. That's it. Great, sir. Thank you very much, sir. With the end of session, I would like to first of all thank Anurag sir and all of you for coming and attending this session. And I have a last poll for all of you for giving feedback. ठीक है, for the session. तो ये feedback वाले आप questions फटाक से answer कर दो, ताकि हमें फीडबैक मिल जाए. मैंने लॉन्च कर दिया है फीडबैक के क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, आई थिंक ये 4 क्वेश्चंस है. ठीक है, फटाक से आंसर कर दो, एंड देन वी विल, एंड यू कैन लीव नाउ फॉर अदर थिंग्स, फॉर स्टडीज एंड कमिंग टू मोड ऑफ गुडनेस, स्लीपिंग अर्ली, गेटिंग अप अर्ली. ठीक है, दैट वाज द टेक होम थिंग. थैंक यू अनुराग सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. बार-बार आप Thank you, Amit sir. इसी तरह बुलाते really रहिए बार-बार. Sure. I would love to interact with such nice audience. The students were really, I mean, they all are really intelligent with the kind of answers they have given. I'm sure you are like giving them best of the value education that one can ever provide as a teacher. So I'm really thankful to all the students and to you, Amit sir. Thank you, sir. Okay, students, time is almost over. फटाक से आंसर दे दो चलो, and we'll end the session.